अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्तदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 12, अध्याय 3 श्लोक संख्या 12। सभी श्लोक रिपीट करिए। इष्टान भोगान ही वो देवा इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता दास्यन्ते यज्ञभाविता यज्ञभावितः तैर्दत्तान प्रदारेभ्यो ते दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा इष्टान् भोगान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान प्रदारेभ्यो तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। इष्टान् भोगान् हि वो देवा इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता भावितः तैर्दत्तान प्रदारेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Shall I read, Prabhuji? Yes, Mataji, please read. In charge of the various necessities of life, the demigods, being satisfied by the performance of yajna, will supply all necessities to you. But he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. The demigods are authorized supplying agents on behalf of the Supreme Personality of Godhead Vishnu.
Therefore, they must be satisfied by the performance of prescribed yajnas. In the Vedas, there are different kinds of yajnas prescribed for different kinds of demigods, but all are ultimately offered to the Supreme Personality of Godhead. For one who cannot understand what the personality of Godhead is, sacrifice to the demigods is recommended. According to the different material qualities of the persons concerned, different types of yajnas are recommended in the Vedas. Worship of different demigods is also on the same basis, namely, according to different qualities. For example, the meat eaters are recommended to worship the goddess Kali, the ghastly form of material nature, and before the goddess, the sacrifice of animals is recommended. But for those who are in the mode of goodness, the transcendental worship of Vishnu is recommended. But ultimately, all yagnas are meant for gradual promotion to the transcendental position. For ordinary men, at least 5 yagnas known as Pancha Mahayagna are necessary. One should know, however, that all the necessities of life that the human society requires are supplied by the demigod agents of the Lord. No one can manufacture anything. Take, for example, all the eatables of human society. These eatables include grains, fruits, vegetable, milk, sugar, etc. for the persons in the mode of goodness, and also eatables for the non-vegetarians like meat, none of which can be manufactured by men. Then again, take for example heat, light, water, air, etc., which are also necessities of life. None of them can be manufactured by the human society. Without the Supreme Lord, there can be no profuse sunlight, moonlight, rainfall, breeze, etc., without which no one can live. Obviously, our life is dependent on supplies from the Lord. Even for our manufacturing enterprises, we require so many raw materials like metals, sulfur, mercury, manganese, and so many essentials, all of which are supplied by the agent of the Lord with the purpose that we should make proper use of them to keep ourselves fit and healthy for the purpose of self realization, leading to the ultimate goal of life, namely liberation from the material struggle for existence. This aim of life is attained by performance of yajnas. If we forget the human life and simply take supplies from the agents of the Lord for sense gratification and become more and more entangled in material existence, which is not the purpose of creation, certainly we become thieves, and therefore we are punished by the laws of material nature. A society of thieves can never be happy because they have no aim in life. The gross materialist thieves have no ultimate goal of life. They are simply directed to sense gratification. Nor do they have knowledge of how to perform yajnas. Lord Chaitanya, however, inaugurated the easiest performance of yajna, namely the Sankirtana yajna, which can be performed by anyone in the world who accepts the principles of Krishna consciousness. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you, Prabhuji. जय श्री प्रभुपाद, थैंक यू। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। हरे कृष्णा, प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ ले। हाँ। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रश्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान तात्पर्य देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ताओं के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात
गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणतः मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है, किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणतः मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारी के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना न तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के करता है संपन्न किया जा सकता है। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट हम समझने का ट्राई करेंगे कि हमें जो कुछ मिलता है सृष्टि में, जो कुछ हमें हमारे शरीर को चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए जो कुछ आवश्यक है, वो सब कुछ देवताओं से मिलता है। तो अलग अलग देवता अलग अलग उद्देश्य के लिए होते हैं और हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो उसको पूरा करते हैं। पर यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये सृष्टि बनाई क्यों गई है और इसका उद्देश्य क्या है। तो मानव समाज ने अभी ऐसा एक संविधान बना दिया है और ऐसा एक नियम बना दिया है कि सब कुछ हमारे लिए है और हमारे भोग के लिए ही सब कुछ। और जो मूल उद्देश्य था सृष्टि बनाने का कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा करें, भगवान का नाम लें, उनसे प्रेम करें, ये जो मूल उद्देश्य है, मूल सिद्धांत है सृष्टि का, इसी को हम भूल चुके हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि अभी का जो समाज है, अभी का जो विज्ञान है और अभी की जो राजनीति है, ये सब चोरों का विज्ञान है और चोरों की राजनीति है। क्योंकि सब कुछ भगवान हमें देते हैं और फिर पॉलिटिशियन और वैज्ञानिक इस पे अपना अधिकार जमा के हमसे टैक्स लेते हैं और हमें गुमराह करते हैं। जबकि ये सब कुछ भगवान ने दिया है, हम सबके लिए दिया है और इसमें कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए दिया है। तो प्रकृति के जितने भी उपहार है उस पे सभी का अधिकार है और भगवान ने किसी पे टैक्स नहीं लगाया है या किसी पे पैसा नहीं लगाया है कि इसके लिए हमें पैसा भरना है, बिल भरना है। तो सब कुछ भगवान ने प्रकृति में हमें दे रखा है। पर कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने भगवान का नाम और धर्म का जो मूल सिद्धांत है, भगवान की सेवा, उसको मिटा दिया है और उसको ऑप्शन बना दिया है
और मेन जो बात है कि मनुष्य आज के समय में हर वस्तु पे अपना अधिकार जमाने का कोशिश कर रहा है। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख और कष्ट, इसका कारण यही है कि हम लोग प्रकृति पे अपना अधिकार जमाने का प्रयास कर रहे हैं, अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुत्व मतलब कि जो चीज़ मैं देख सकता हूँ और जिस पे मेरा नियंत्रण है, मैं उसका मालिक हूँ। इसको कहते हैं प्रभुत्व जताना प्रकृति के ऊपर। तो इसी के कारण हम कष्ट भोगते हैं और इसी के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होती है। क्योंकि जो मूल सिद्धांत है कि प्रकृति का मालिक भगवान है, ईश्वर है, और ईश्वर के भक्ति के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए हमें हर वस्तु का इस्तेमाल करना है। तो फिर हम पे माया असर नहीं कर सकती। तो इसी को यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का अर्थ है कि जो कुछ हमें मिला है उसके हम मालिक नहीं हैं, हमें उसको मालिक की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि बैंक के अंदर एक कैशियर होता है। तो कैशियर जो है वो लाखों करोड़ों रुपए की नोट गिनता है, पर वो उसमें से एक भी नोट अपनी जेब में नहीं रख सकता, क्योंकि उसका काम है भगवान, जो बैंक का जो मालिक है, बैंक के लिए वो नोट गिनता है, उसकी सेवा है, वो बैंक के लिए काम कर रहा है और बैंक उसको महीने के अंत में तनख्वाह देती है। तो पूरे महीने में वो बहुत सारी नोट गिनता है और बहुत सारे पैसे उसके हाथ में आते जाते रहते हैं, पर उसमें से वो ऐसा नहीं कह सकता कि ये नोट मेरे हैं या मैं इसका मालिक हूँ। हालांकि वो नोट उसके हाथ में आते जाते रहते हैं, पर वो सिर्फ सेवा के लिए उसको गिन रहा है और सारी राशि, सारी जो जमा राशि है वो बैंक में जमा करता है। तो उसी तरह से भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, समाज दिया है, देश दिया है, रहने को जगह दी है, ज़मीन दी है, आकाश है, सूरज की रोशनी है, पानी है, हवा है, अनाज है, दूध है, और जो मांस खाते हैं उनको, जानवर भी जो है वो भी हम बना नहीं सकते, उनको मांस के लिए भी भगवान पे आश्रित रहना पड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमको ये सब दिया गया है, बट हम इसके मालिक नहीं बन सकते। पर आज के समय में हम देखते हैं कि मनुष्यों में मूर्खता बहुत बढ़ चुकी है और हम अपना प्रभुत्व जमाने का ट्राई कर रहे हैं कि ये मेरा है। तो एक्चुअली ये सब कुछ ईश्वर का है, ईश्वर हर चीज़ के मालिक है और हमें ईश्वर की भक्ति करके, उनकी सेवा करके हमें शांति से जीवन जीना है। तो अगर हम भक्ति करते हैं, शांति से अपना सेवा करते हैं भगवान की, नाम लेते हैं भगवान का और समाज में सबको बताते हैं भगवान के बारे में, तो फिर समाज एक शांतिपूर्ण तरीके से रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। फिर हमारे बीच में लड़ाइयाँ नहीं होगी। पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम हर चीज़ को अपना बनाना चाहते हैं और हम ईश्वर के सत्ता को नहीं मानते हैं, भगवान की सत्ता, गुरु की सत्ता को नहीं मानते हैं। तो इसीलिए हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं और संघर्ष होता है और इसीलिए इतने सारे व्यवधान आते हैं जीवन में। तो इसका जो सरल उपाय यहाँ बताया है प्रभुपाद जी ने, वो है कि संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हमें अपने जीवन को सरल बनाना है और शांतिमय बनाना है। अगर हम सब मिलके यज्ञ करते हैं भगवान के नाम का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो फिर हमारा जीवन सफल हो सकता है। हम एक सरल जीवन जी सकते हैं जिसमें शांति होगी और संपन्नता होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। केवल हरे कृष्णा का यज्ञ करके हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो ये संदेश है यहाँ पे श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न या डाउट है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो ये लास्ट लाइन है ना, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भूखता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो प्रभु जी, हमें देवताओं को भी मतलब कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहिए। हाँ, एक्चुअली इस तात्पर्य में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जो भगवान को नहीं समझ सकते उनको कम से कम देवताओं को अर्पित करना चाहिए। तो सभी लोग भगवान को नहीं समझ सकते। जैसे हम लोग भगवत गीता के बारे में बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ईश्वर है, वही परम ईश्वर है, तो बहुत सारे लोग इसको मान नहीं सकते, इसको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उनके अंदर श्रद्धा नहीं है भगवान के अंदर, और वो नहीं समझ सकते कि भगवान ही सर्वशक्तिमान है। तो उनके लिए कम से कम देवताओं की पूजा करने का विधान दिया गया है। इसी ऊपर के पैराग्राफ में लिखा है प्रभुपाद ने कि जो भगवान को नहीं समझ सकते उन्हें कम से कम देवताओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम नास्तिक बन जाते हैं, किसी की पूजा नहीं करते, तो फिर हम चोर बन जाते हैं। और कोई प्रश्न किसी को? प्रभु जी, जैसे मैंने एक्चुअली एक शॉप देखी थी यहाँ पर कामली रोड पे, तो मतलब उन्होंने कृष्णा के नाम पे रखा है, मतलब चिकन शॉप। मतलब मैं तो हैरान हो गया देख के, भगवान का नाम रख रहे हैं, तो बहुत ही गलत बात है। हाँ, ये तो सही बात है। अब लोगों का अज्ञान कितना है हम सोच नहीं सकते। मैंने अभी तो एटलीस्ट मथुरा में उन्होंने बंद कर दिया है। मैं जब पहले जाता था तो इतने वृंदावन, गिर गए कि मतलब, हाँ जी जी, मथुरा में भी वाइन बियर शॉप्स और चिकन की शॉप्स होती थी, अब एटलीस्ट वहाँ बंद करवा दिया गया है। तो ये तो अज्ञान का पहलू है। लोग भगवान के नाम से पाप करते हैं, तो उनको दंड भी उतना बड़ा मिलता है। हाँ जी तो अभी धीरे धीरे हमें विश्वास है कि धीरे धीरे बदलाव आएगा और बहुत सारे चेंजेस आएंगे। हम लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं रोज़ कि लोग जो है वो जाग जाएं और ये सब गलत काम करना बंद कर दे। तो धीरे धीरे आएगा बदलाव, क्योंकि अभी जो पाप हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे परिणाम भी लोग भुगत रहे हैं, और धीरे धीरे करके जाग भी रहे हैं। जब थोड़ा लाइफ में परेशानियाँ आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो फिर लोग थोड़े उनको ज़बरदस्ती सोचना पड़ता है कि इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं लाइफ। तो धीरे धीरे आएगा चेंज। हमें ट्राई करते रहना है और लोगों को जगाते रहना है और बोलते रहना है कि प्लीज़ आप गीता पढ़िए, यज्ञ करिए, क्योंकि यज्ञ किए बिना हम अपराधी बन जाते हैं, पापी बन जाते हैं। तो यज्ञ करना ही चाहिए किसी भी रूप में। अगर आप भगवान को नहीं मान सकते तो कम से कम किसी देवता की पूजा करिए। मतलब ऐसा मानिए कि हमारे ऊपर कोई है। मतलब आप कृष्णा को नहीं पहचान पा रहे हैं, परमेश्वर को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हो सकता है अभी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं है कि भगवत गीता सभी लोग नहीं समझ सकते हैं, कुछ लोग ही समझ सकते हैं। बट एटलीस्ट हमें लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए कि प्रकृति में देवता हमसे ऊपर है, और उनकी कम से कम नाम लो, उनके लिए यज्ञ करो, कुछ एटलीस्ट कुछ तो आप धार्मिक कार्य करो, ताकि आप चोर की श्रेणी में ना आ जाओ। क्योंकि प्रभुपाद ने यहाँ क्लियर लिखा है कि अगर हम यज्ञ नहीं करते हैं, हम नहीं मानते हैं कि हमारे ऊपर कोई है जो हमें सब कुछ सप्लाई कर रहा है, तो फिर हम चोर की श्रेणी में आ जाते हैं। तो फिर उसके तो परिणाम बहुत बुरा होता है, उसको दंड भी बहुत भुगतना पड़ता है। तो किसी ना किसी रूप में धर्म तो होना ही चाहिए। अगर आप कृष्णा की भक्ति करते हैं वो तो परम सबसे बेस्ट है, वो तो फिर तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर अगर इतनी बुद्धि अभी डेवलप नहीं हुई है तो एटलीस्ट आप देवताओं की पूजा करो और उनको अर्पित करो, ताकि एटलीस्ट आप धर्म से कनेक्टेड रहोगे। फिर हो सकता है फ्यूचर में आपकी बुद्धि डेवलप हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि सभी वस्तुओं का, सभी देवताओं का जो ओरिजिन है, जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में, अहम आदिर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वश। 10वें अध्याय में बोलते हैं भगवान दूसरे श्लोक में कि मुझे कोई नहीं जानता क्योंकि मैं सबका ओरिजिन हूँ। और भगवान तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम होता है। भगवान को समझना, उनका ज्ञान प्राप्त करना,
कृष्ण भगवान को सरेंडर करना और सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना हमेशा, ये काफ़ी मुश्किल होता है कि मन के अंदर बहुत सारे इम्प्रेशंस है और बहुत सारे अलग अलग विचार है। हमने बहुत कुछ सुन रखा है अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से। उसमें से कई लोग नास्तिक भी होते हैं, वो लोग कहते हैं भगवान है ही नहीं या कोई देवी देवता नहीं है, ये सब इमेजिनरी चीज़ें हैं, काल्पनिक चीज़ें हैं, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो इसीलिए हम इतनी सारी बातें जो सुनते हैं बचपन से, कभी किसी ने कुछ बोला, कभी किसी ने कुछ बोला, हमको क्लियर नॉलेज किसी ने दिया नहीं है प्रभुपाद के अलावा। तो इसीलिए हम बहुत लकी है, हमारे पास प्रभुपाद के ग्रंथ हैं और हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारे पास हर क्वेश्चन का आंसर है, और कोई हमसे क्वेश्चन भी करे कि आप सिर्फ कृष्णा का नाम क्यों लेते हैं, तो हम उनको आंसर भी दे सकते हैं। पर सब लोग इतने लकी नहीं हैं और सब लोग इतना समझ भी नहीं सकते। कई लोग होते हैं जो ये गीता पढ़ भी लेते हैं तो भी उनको समझ में नहीं आता, वो लोग बीच में ही छोड़ देते हैं कि यहाँ तो सिर्फ कृष्णा का बारे में बताया, तो वो छोड़ देते हैं क्योंकि अभी उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो अभी भी उनके दिमाग में डिविजन्स है कि हम और देवता, और अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा करनी चाहिए। जबकि गीता में और भागवत में साफ लिखा है कि अगर आपके मन में अगर बहुत सारी इच्छाएं भी है तो भी कृष्ण का ही नाम लो, क्योंकि कृष्ण ही ऑल पावरफुल है, सर्वशक्तिमान है, और वो आपकी मटेरियल डिज़ायर्स को भी पूरा कर सकते हैं। तो मटेरियल डिज़ायर्स अगर है भी तो भी कृष्ण का ही नाम लो। पर इतना अभी बुद्धि डेवलप होता नहीं है सब लोगों का, इसीलिए वो देवताओं की भी पूजा करते हैं। तो वो भी अच्छा है, एटलीस्ट वो किसी की तो पूजा करते हैं। एटलीस्ट वो मानते हैं कि हमारे ऊपर कोई है, मतलब हमसे सुपीरियर कोई है। तो मतलब कि उनका पतन नहीं होगा, उनका प्रोग्रेस होता रहेगा। फिर एक दिन उनको कृपा हो जाएगी तो उनको भी समझ में आ जाएगा कृष्णा ही सब कुछ है। तो भगवान कहते हैं गीता में 7वें अध्याय में, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यत। जो बहुत जन्मों बाद जिसको ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ कृष्णा ही सब कुछ, वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभा। पर ऐसा जो महात्मा है, ऐसा जो व्यक्ति है, वो बहुत ही दुर्लभ होता है और लाखों करोड़ों में कोई एक होता है, जैसे शिला प्रभुपाद है। तो शिला प्रभुपाद इतना क्लियरली समझा रहे हैं, तो हमें उनकी स्टेटमेंट्स का एडवांटेज लेना चाहिए और हमें कृष्णा को सरेंडर करना चाहिए। और धीरे धीरे बाकी लोग भी करेंगे जब वो देखेंगे कि ये इजी है, इतने सारे देवताओं की पूजा करने से बेटर है कि ये कृष्णा का ही नाम लिया जाए। तो वो फिर धीरे धीरे इसी पाथ पे आ जाएंगे, इसी मार्ग पे आ जाएंगे। बट तब तक वो अगर किसी और की पूजा भी कर रहे हैं तो अच्छी बात, एटलीस्ट। तो कृष्णा ने खुद बोला है गीता में कि वो उनको सपोर्ट करते हैं। तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदधामि अहम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उनकी इच्छाओं को भी पूरी करता हूँ जो देवताओं की पूरी पूजा करते हैं। तो भगवान उनको भी सपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे फिर उनको ज्ञान देते हैं कि देवताओं से भी परे कृष्णा है जो परम ईश्वर है। तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है, अचानक से नहीं होता है। हम लोग लकी है कि हम लोग डायरेक्टली प्रभुपाद की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा तो कंसेप्ट क्लियर है। पर बाकी लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर होने में टाइम लगता है। तो हमें प्रीचिंग करते रहना है और इसके क्वेश्चंस के आंसर देते रहना है। तो एक दिन फिर ये बहुत बड़े लेवल पे सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो और कोई क्वेश्चन किसी को है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम अगला श्लोक हरे पढ़ेंगे। कृष्णा हाँ प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ना किसी ने पूछा था कि जो गीता है, गीता जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब मैंने क्लासेस के बारे में मुझे बोला था उन्होंने कि गीता हम जो बुक है वो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, हमें क्यों किसी के थ्रू पढ़ने की मतलब आवश्यकता है गीता को? हाँ तो यहाँ पे भी हम पढ़ ही रहे हैं, डायरेक्टली पढ़ रहे हैं।
हम लोग मतलब खुद से पढ़ने का शायद उनका मतलब ये था कि हम घर में खुद पढ़ सकते हैं, मतलब ये क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ। हाँ तो क्लासेस, हाँ तो ठीक है, खुद से पढ़ो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। हमने कंपलसरी अगर लोग पढ़ेंगे तो उनको फ़ायदा ही होगा, बट अगर वो खुद भी पढ़ना चाहते हैं और खुद समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हम तो यही चाहते हैं कि वो समझे और कृष्णा के डिवोटी बने बस, चाहे वो क्लास में आए या ना आए, वो उनका ऑप्शन है। अगर वो खुद ही पढ़ के समझ जाते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारा टेंशन कम हो जाएगा। तो अगर दुनिया में सारे ही लोग खुद ही पढ़ के समझने लगे तो हमारा तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा, फिर तो हम और खुश हो जाएंगे और हमारा जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा। तो अगर वो खुद समझ सकते हैं तो अच्छी बात है। तो फिर भी हमारा दरवाज़ा तो खुला है, अगर मान लो कभी उनको नहीं समझ में आता है, अगर किसी पॉइंट को लेके उनको क्वेश्चन है तो कभी भी आ सकते हैं वो। एक्चुअली ये हमारा जो प्रोसेस है ओपन सोर्स प्रोसेस है। ओपन सोर्स मतलब कि ये सबके लिए ओपन है, हमेशा के लिए ओपन है, कोई कभी भी आ सकता है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारा मेन टारगेट है कि दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं। अब 750 करोड़ लोगों को बचाना है तो हमें ओपन सोर्स ही करना पड़ेगा, कि हमने दरवाजे खोल दिए हैं, हम ओपन कोर्स ले रहे हैं, आप कभी भी आइए, नहीं भी आएंगे तो खुद पढ़िए, बट मेन मिशन ये है कि पढ़िए प्लीज़, भगवत गीता पढ़िए, उसको ध्यान से पढ़िए, सीरियसली लीजिए, उसको हल्के में मत लीजिए। मेन प्रॉब्लम आज के समय में ये है, लोग भगवान कृष्ण को और भगवत गीता को बहुत हल्के में लेते हैं, तो साइड में कोने में रख देते हैं बस, कि देखा जाएगा बाद में। और कई लोग तो कहते हैं इसको पढ़ने से क्या हो जाएगा। एक्चुअली उसको पढ़ने से सब कुछ हो जाएगा, बट उस बात पे विश्वास नहीं है। और अभी वो लोग जो कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये यूनाइटेड नेशंस है, या हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते हैं, तो बस इसमें वो लोग टाइम और पैसा और एनर्जी खर्च करते हैं, उसमें से नतीजा कुछ निकलता नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं यूनाइटेड नेशंस बना है, उसमें सिर्फ झंडे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ फ्लैग्स बढ़ते जा रहे हैं, बट किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब सिर्फ एक दिखावा होता है, ये सब इतने इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, और इधर का प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाता है, वहाँ का इधर आता है, फ़ोटो खिंचवाते हैं, वीडियोस होते हैं, बड़ी बड़ी स्पीचेस देते हैं, कुछ लोग कुछ देर तक उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर उससे कोई रिज़ल्ट तो निकलता है नहीं, तो फिर से वही होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, ब्राह्मण और शूद्र होगा, रिजर्वेशन होगा, लड़ाई होगी कास्ट को लेके, धर्म को लेके लड़ाई होगी, देश को लेके, बॉर्डर को लेके लड़ाई होगी, बार बार वही होगा सब कुछ। तो प्रभुपाद कहते हैं जब तक आप भगवत गीता को नहीं लाते हैं लेजिस्लेशन में, या इंटरनेशनल रिलेशंस में, या यूनाइटेड नेशंस में, आप भगवत गीता को जब तक नहीं लाते हैं, तब तक किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलने ही नहीं वाला है। इसी तरह से प्रॉब्लम्स चलती रहेगी, और इनफैक्ट ये जो बड़े लेवल पे लोग बैठे हुए हैं वो चाहते भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एनजीओ में, मैं एनजीओ में काम कर चुका हूँ, और मेरे को एज अ मैनेजर वहाँ पे प्रॉब्लम्स दी जाती थी कि ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी। अब जैसे ही मैं सोल्यूशन लेके आता था, और ऐसा सोल्यूशन लेके आता था जिससे सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, तो वो उस सोल्यूशन को रिजेक्ट कर देते थे। अब मैं उनसे पूछता था कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, इसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हो आप? तो वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं, कहते हैं हम इस पे सोचेंगे, हम इस पे कमेटी करेंगे, हम इस पे ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा कमेटी करने की क्या बात है, ये बहुत सिंपल सोल्यूशन है, इससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर बाद में मेरे को फील होने लगा कि ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना चाहते। अब मुझको एक प्रॉब्लम उन्होंने दी थी कि जो क्लासरूम्स है, मतलब मैं जिस एनजीओ में काम करता था उसमें वो इंग्लिश सिखाते थे। अब उसमें एक प्रॉब्लम थी कि क्लासरूम्स में टीचर्स कम पढ़ते थे, मतलब स्टूडेंट्स ज़्यादा है, करीब 25 या 30 हज़ार स्टूडेंट थे दिल्ली में, पूरा बड़ा एनजीओ था वो, 30,000 स्टूडेंट्स थे और बहुत सारे क्लासरूम्स थे। अब कई क्लासरूम्स ऐसे थे जहाँ पे टीचर कम पढ़ते थे, तो क्लासरूम में टीचर आता ही नहीं था, बच्चे ऐसे ही बैठे रहते थे। तो ये प्रॉब्लम मुझको दी गई कि ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है। अब मैंने कैलकुलेट किया कि कितने क्लासरूम है, कितने स्टूडेंट आते हैं, कितने टीचर की रिक्वायरमेंट है, कितने टीचर अभी है और कितने अभी और नए रिक्रूट करने पड़ेंगे। मैंने सारा कैलकुलेशन किया, फिर मैंने पूरा स्ट्रेटजी बनाया कि कैसे हम लोग प्रीचिंग कर सकते हैं, कि टीचर्स को कैसे रिक्रूट कर सकते हैं,
यंगस्टर्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो टीचर बने। पूरा प्लान बनाया, फिर मैंने प्लान प्रेजेंट किया कि अगर ये हम फॉलो करेंगे तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है टीचर्स की वो पूरी हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे 3 महीने तक करने दिया। 3 महीने के अंदर मैंने सारी वैकेंसीज भर दी, मतलब एक भी कहीं पे भी कोई क्लासरूम खाली नहीं था। फिर मुझको उन्होंने उस प्रोजेक्ट से हटा दिया। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे तो लगा प्रमोशन दोगे मुझे, कि मैंने सारी वैकेशन जितने भी क्लासरूम खाली पड़े थे वो सब भर दिए मैंने टीचर से। तो उन्होंने कुछ और ही रीज़न बता दिया कि नहीं, हमको अभी और कहीं पे आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप वहाँ पे काम करिए। तो मैं वहाँ पे काम करने लगा। फिर मैंने चेक किया तो वैकेंसी वापस से 100 के ऊपर चली गई। अब मैं सोचूं कि इतनी मेहनत करके मैंने सारी वैकेंसी भर दी और फिर मेरे को प्रोजेक्ट से हटा दिया, मेरे को दूसरे प्रोजेक्ट पे डाल दिया। और बाद में 3 महीने बाद देखा तो वो जितनी वैकेंसी भरी थी वापस खाली हो गई सारी। तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करना चाहते, वो प्रॉब्लम को बनाए रखना चाहते हैं ताकि जो ऊपर मैनेजमेंट में लोग बैठे उनको कुछ काम मिले और वो प्रॉब्लम दिखा के बोल सके कि हाँ, इस प्रॉब्लम पे इस मैनेजर को रखना है और इस मैनेजर को इतनी सैलरी देनी है। तो फिर मेरे को समझ में आया कि इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। स्ट्रैटेजी ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना चाहिए, पर प्रॉब्लम के नाम पे हमें एक पोजीशन क्रिएट करनी है और उसके लिए सैलरी क्रिएट करनी है और फिर मैनेजमेंट से पैसा निकालना है कि ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मैनेजर चाहिए और इसके लिए पैसा चाहिए। तो ये ऊपर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे एनजीओ हो या गवर्नमेंट हो या यूनाइटेड नेशंस हो या दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते। ये लोग प्रॉब्लम के नाम पे अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं बस। तो ये मेरे को रियलाइज़ हो गया। तो मैंने एनजीओ तभी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया वहाँ से। मैंने कहा कि आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना चाहते, आप प्रॉब्लम बनाए रखना चाहते हैं। और यही प्रॉब्लम गवर्नमेंट के अंदर है। गवर्नमेंट जानती है कि भगवत गीता सोल्यूशन है और जातिवाद और ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है, राष्ट्रवाद भी ख़त्म हो सकता है, जातिवाद भी ख़त्म हो सकता है। जितने भी वाद है जिससे मनुष्य डिवाइड होते हैं वो सारे वाद ख़त्म हो सकते हैं, पर इनको प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं है। हमने गवर्नमेंट को कितनी बार लिखा है कि भगवत गीता को आप पार्लियामेंट में ले आइए, जातिवाद ख़त्म हो जाएगा, सारे वाद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि भगवान सब कुछ दे रहे हैं हमको। आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लिख दो कि भगवान मालिक है, भगवान हर चीज़ दे रहे हैं और हम सब भगवान के सेवक हैं। ये 3 स्टेटमेंट भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए तो सारा दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर इनको प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं है। प्रॉब्लम के नाम पे इनको वोट कमाने हैं और डिवाइड करके रूल करना है इनको। तो ये मेन प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमको बहुत सोच समझ के भगवत गीता फॉलो करनी है और खुद समझना है, दूसरों को भी समझाना है कि हमें अपने आप को डिवाइड नहीं करना है, ना देवताओं के नाम पे, ना देश के नाम पे, ना भाषा के नाम पे, ना जाति के नाम पे, किसी भी नाम पे हमें अपने आप को डिवाइड नहीं करना है। अब देवताओं की पूजा करना भी एक तरह का डिवीज़न है कि ये शिव का भक्त है, ये दुर्गा का भक्त है, ये गणेश का भक्त है, ये भी डिवीज़न है। तो ये भी प्रॉब्लम बना के रखेगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। तो इसलिए कृष्णा ने क्या बोला है कि मेरे अकेले की शरण में आओ, माम एकम शरणम व्रज। तो ये सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, बट लोग इसको फॉलो ही नहीं करना चाहते, वो प्रॉब्लम को बनाए रखना चाहते हैं। तो एटलीस्ट हमको जागना है, हमको कृष्णा की शरण में जाना है और धीरे धीरे लोग भी समझेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम बनाए रखेंगे तो कष्ट होने ही वाला है। प्रॉब्लम सॉल्व करना है और मेन टारगेट है प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना है, तो फिर लाइफ में शांति आएगी। तो अगर किसी को और कोई क्वेश्चंस है तो आप फिर से रिकनेक्ट करिए, मैं भी फिर से इसको स्टॉप करके रिकनेक्ट करता हूँ। हरे कृष्ण।